Good morning. What's up, ladies and gentlemen, boys and girls, spices and dreamers? Welcome to another Monday morning traffic of Mumbai. If you're not from Mumbai, comment down below. Let me know from which city you are watching this video so that I can at least know where my audiences are from. If you're planning to come to Mumbai or stay in Mumbai or work in Mumbai, then I would like to show you a glimpse of the Monday morning traffic of Mumbai. Luckily today, this is not looking very busy. Normally on Mondays, this particular road, we are in Kandivli Lokhandwala, and this place is perpetually jammed. There's a lot of traffic on this road. Today, for some reason, there is no traffic. Normally in this stretch, it could take you easily 20 minutes to reach the highway. Ideally, it should take you only 5 minutes. Sometimes it could take you even 40 minutes. Now see, the traffic has started from here. So there are too many rickshaws, buses. So these are all sharing rickshaws that take you to the station. The sharing rickshaw costs about, I think it's 20 rupees. Per person is 20 rupees. It will take you from Kandivli Lokhandwala right up to the railway station, Kandivli East railway station. So like you see over here, 3 people are sitting in the rickshaw. While coming back by train, if you're coming by train, and if you're coming after 6 o'clock, then the chances of you getting a sharing rickshaw to Lokhandwala Kandivli East is very less. Rickshawalas don't want to come to Lokhandwala just because of the traffic. Wow, the Skoda Kodiaq looks amazing. So this place is called the Hanuman Nagar. Again, this place is perpetually jammed. Traffic because of this right turn over here. There's a lane over here, so the rickshaws coming from the opposite side try to go in the lane, and then there is a huge traffic jam because of that. The other reason is because this particular area is all blocked because there's a temple over here and they have put some barricade, so the road kind of narrowed down, and you can see all these people are waiting for rickshaws to take them to the station, and hence a lot of people over here, if you can see, they are going walking to the railway station. They don't want to wait for the rickshaw, so they're going walking to the station. If you walk it up to the station, it will take you roughly about 15 minutes from here to the Kandivli East railway station. Or they might also be going to the metro, which is very close to the highway. I mean, from here to the metro station will take you roughly about only 5 minutes if you're walking. And if you can see that bridge ahead where the cars and all are going, the rickshaws, that's the Western Express Highway. And if I take the left from here, I'll connect to the Western Express Highway. See this madam not looking left or right. Alright, so you can see the rickshaws and all ahead. See, all these people are going to the metro station, all of them. And on my left is Samtanagar police station. And we have joined the Western Express Highway. Welcome to the Monday morning grind. Look at this. Woohoo! तो भाई लोग, अगर आप लोग मुंबई आना चाहते हो काम करने के लिए या रहने के लिए या शहर करने के लिए, तो ये देख लो, मंडे मॉर्निंग में आपको ऐसा ट्रैफिक मिलेगा, 150% मिलेगा. कांदिवली के साइड, कांदिवली, मलाड, बोरीवली, ये ट्रैफिक ज़रूर मिलेगा आपको. So since I have a bike, I can keep my bike towards the left and keep moving ahead. But if you have a four-wheeler, then you'll probably be jammed in the traffic. अभी सोचो, दो व्हीलर को ही इतना ट्रैफिक हो रहा है, तो फोर व्हीलर को कितना होगा प्रॉब्लम. Everybody is लगे पड़े सब लोग. मंडे ऑफिस ग्राइंड. अब 5 दिन कैसे निकलेंगे फ्राइडे तक. सैटरडे संडे का इंतज़ार रहेगा. So some of the companies, they provide office buses. Like on my right hand side, there is an office bus which gives them a pickup and a drop, which is good. They're extending the road over here. Nice, very nice. So I read in the papers that the Goregaon Western Express Highway is going to be stretched a little bit. That is another area which is perpetually jammed with traffic. So yesterday we went on a short bike ride to Hotel Ahura, which is 100 kilometers from Kandivli. My brother and me had gone over there for a quick short ride, and we go to Ahura, one because of the bike ride, and two because Ahura has some fantastic akuris. Akuris are Parsi scrambled egg, very creamy, yummy it was. The bun maska is amazing. The bun is totally different, not what you get in Mumbai. You know, the taste, the texture, the softness is completely different. Even their regular pav is superb. So I had the akuri, I had bun maska, I had salli pe edu. Salli pe edu is nothing but hash brown, and on top of that there is a fried egg. Oh, the Himalayan 450. I don't know if the Himalayan 450 is comfortable riding in the traffic. I know for a fact that on the highways it is superb. Cruises
at 120, 140 easily. But I'm not sure in the traffic if it is comfortable, especially Mumbai traffic. On the other hand, my Triumph Scrambler feels very light and nimble. Yesterday my brother rode my Scrambler. He has the KTM Adventure 250, and when he rode the Scrambler, my Scrambler, he was in awe of the bike. He was like, what a bike this is, man. What suspensions, what... He said even on the 6th gear, I felt like it is on the 5th or the 4th gear because it had so much of torque in it. Even on the 6th gear, he felt like there should have been a 7th gear. And I feel the same. The amount of power that this bike has is insane. Now we are in Malad. We are on the Malad flyover. Look at that traffic, man. जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, वहाँ तक ट्रैफिक है. सोचो, ये है मुंबई मेरी जान. Everybody wants to come to Mumbai. और ये ट्रैफिक कहाँ तक रहेगा पता आपको? ये रहेगा बैंड्रा तक. मतलब सांता क्रूज एक बार ख़त्म हो गया ना, उसके बाद थोड़ा हल्का ट्रैफिक कम हो जाता है. तो इसमें से जो आधा क्राउड है वो अंधेरी तक ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद जो आधा क्राउड है वो बैंड्रा तक ख़त्म हो जाएगा. बिकॉज बैंड्रा इज़ अनदर फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ मुंबई. ये देखो कितने लोग सारे बस के लिए रुके. पीपल कम टू मुंबई टू फुलफिल देयर ड्रीम्स एंड देन लगे पड़े इन द मुंबई ग्राइंड. ओह, होंडा RS 350 अच्छा दिख रहा है यार, बट थोड़ा मेरे लिए मुझे शॉर्ट लग रहा है. मुझे एकदम नीचे लग रहा है. आई वुड फील वेरी स्मॉल ऑन दैट बाइक. बट फायरिंग अच्छा है बाइक का, अच्छी फायरिंग है. बट यू कैन सी द बाइक इज़ वेरी शॉर्ट, मतलब थोड़ा हल्का नीचे है. बट मेरा द स्क्रैम्बलर इज़ ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी नाइस एंड टॉल. तो मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है कि द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दिस बाइक इज़ अमेजिंग. और मैं वैसे ही 6 फुट का हूँ, तो विजिबिलिटी वाइज मुझे और अच्छा मिलता है. ये कैसा चला रहा है यार ये भाई? या तो रोक के साइड में हेलमेट ठीक कर ले. इसका हेलमेट देखो भाई कैसा है यार. आधा सर के ऊपर क्या है, क्या किया उसने भाई उसके हेलमेट को? अजीब लग रहा है यार. या तो किसी का और का हेलमेट उसकी वाइफ का हेलमेट पहनने होगा. अजीब लोग हैं यार. तो यहाँ पे नर्सरी है. हाईवे पे बहुत सारे आपको ऐसे नर्सरीज मिलेंगे, प्लांट नर्सरीज. काफ़ी अच्छा ग्राफिटी किया है वॉल पे, है ना, अच्छा लग रहा है. ट्रैफिक देखो भाई, ट्रैफिक अलग लेवल. मंडे मॉर्निंग सुबह के बज गए हैं 9:15. बढ़िया. हाँ हाँ हाँ, क्या ट्रैफिक है. वाह वाह वाह. यू हैव टू एंजॉय द ट्रैफिक. इफ़ यू थिंक अ लॉट अबाउट द ट्रैफिक ना, इफ़ यू आर स्टेइंग इन मुंबई, और आप ट्रैफिक के बारे में जितना सोचोगे ना, आपको उतना ही फ्रस्ट्रेशन फील होगा. तो इससे अच्छा जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते उसे एंजॉय करो, राइट? सो व्हेन यू एंजॉय द मैडनेस यू विल हैव फन. मुंबई में अगर रहना है तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा. मुंबई हैज़ इट्स ओन चार्म. कुछ भी बोल दो बॉस, दैट्स व्हाई एवरीबडी वांट्स टू कम टू मुंबई. यहाँ की भाग दौड़, द फास्ट पेस ऑफ लाइफ इज़ व्हाट पीपल एस्पायर फॉर. और जो मुंबई के लोग हैं वो बाहर जाना चाहते हैं थोड़ी खुशी के लिए, थोड़ी क्या बोले तो peace of mind के लिए. Now see, this bike has been in the stop and go traffic, correct, from the time that I have left my house. Almost I have not even touched the 4th gear. But bike देखो कितना cool है अभी भी, hot नहीं हुआ है. The heat dissipation, जैसे मैं पहले भी एक बार मेरे फर्स्ट वीडियो में कहा था कि ये बाइक में ना आपको गर्म नहीं लगता. आपको इंजन है ना ऐसा गर्म नहीं होता है. पता नहीं क्या किया है ट्रायम्फ ने, बहुत ही बेहतरीन है. मतलब अगर आप KTM चलाओगे ना, इतना ट्रैफिक में ना गाड़ी एकदम गर्म हो जाएगा और आपको आपके थाइस पे ना बहुत गर्म लगेगा. बट नॉट द स्क्रैम्बलर 400X. वेरी नाइस इंजीनियरिंग ऑफ दिस बाइक. सुपर. बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रहा है, ट्रस्ट मी. वही अगर KTM 250 या 200, 390 तो भूल ही जाओ, बहुत गर्म होती है भाई बाइक. मेरे पास थी ना KTM 200, बहुत गर्म होते थे. वाओ, दिस ट्री इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार. एंड इन फ्रंट ऑफ मी इज़ ओबरॉय मॉल, और उसके पीछे है वेस्टर्न होटल, 5 स्टार होटल. ओ भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओह हो, ऐसा रोड थोड़ा जैसा खाली मिला ना, बाइक जैसा भगाने को बहुत मज़ा आता है. पेट्रोल मैंने कल ही भरा दिया था, सो माई बाइक इज़ सेटिस्फाइड. स्टमक इज़ फुल. टॉप अप कर दिया था पूरा फ्यूल जब हम अहूरा से आ रहे थे, तो नो प्रॉब्लम. एंड दैट रोड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट एग्जिट रोड, दैट गोज़ टू RA. तो अगर आप वो रोड लोगे और वहाँ से लेफ़्ट जाओगे तो आप RA कॉलोनी जा सकते हो, वहाँ से आप पवई जा सकते हो. और ये है, अभी हम गोरेगांव क्रॉस कर चुके हैं. तो जो लोग बॉम्बे से नहीं है, मैं बता दूँ, कांदिवली के बाद आता है मलाड, मलाड के बाद आता है गोरेगांव, और फिर गोरेगांव के बाद आता है जोगेश्वरी. सो दिस वी आर मूविंग टूवर्ड्स टाउन, मतलब बैंड्रा की तरफ हम जा रहे हैं.
या यही रोड आपको सीधे आपको चर्च गेट तक लेके जाएगा, नरीमन पॉइंट, राइट टिल दी एंड ऑफ मुंबई. सो नरीमन पॉइंट इज़ द एंड ऑफ मुंबई. वैसे कोलाबा भी है, आप कोलाबा नेवी नगर जा सकते हो वहाँ से. सो दीज आर ऑल द एंड पॉइंट्स ऑफ मुंबई. अब जनवरी का महीना है, सो द वेदर इज़ स्टिल ओके. एट 9:20 ऑल्सो आई एम नॉट फीलिंग हॉट. यही अगर अभी मार्च एक बार चालू हो जाएगा होली के बाद, गर्मी स्टार्ट, and at that time even at 9:20 you will sweat your bloody ass off. See, from Kandivali I have come right up till almost Jogeshwari. Now we're going to be touching Jogeshwari. और ये बाइक अभी तक 4th गियर तक भी नहीं गई है. So you can imagine the traffic. But the low end torque of this bike is so amazing यार. 3rd गियर पे भी देखो बाइक मस्त चलती है, नॉक नहीं होती है. मतलब you'll have to ride it to experience what I'm saying. थोड़ा जगह मिला ये बाइक एकदम खींच लेती है. वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल. कल जब मैं जा रहा था अहूरा तो ये बाइक को मैंने 120 तक टच कराया था. ब्यूटीफुली शी रोड या ब्यूटीफुल. मतलब मैं उसके ऊपर और जा सकता था लेकिन मेरी फट रही थी. कैपेबिलिटी है बाइक में, बट आई वॉज गेटिंग स्कैर्ड. सो कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू फील स्कैर्ड ऑन द हाईवे टू दहानू साइड, इफ़ यू फाइंड दैट हाईवे टू बी स्कैरी. मैं जब लोनावला जाता हूँ ना, मुझे इतना डरने लगता है. लोनावला का जो रोड है, आई फील प्रीटी नॉर्मल इन दैट. अच्छा है वो रोड. और जो ये रोड है, जो दहानू का जो रोड है, उस पर ना मुझे बहुत डर लगता है यार. द अमाउंट ऑफ ट्रकर्स एंड द क्वालिटी ऑफ द रोड इज़ पथेटिक, रियली पथेटिक. कितने टाइम से वो रोड बन रहा है और बनने के बाद भी यू नो द अनइवननेस ऑफ द रोड, कहीं पे ख़राब पैचेस है, सडनली ग्रेवल्स आ जाते हैं. ऐसा अच्छा रोड रहेगा, फिर सडनली अचानक से एकदम ऐसा बम्प आएगा, उसके बाद ग्रेवल्स आएंगे. एकदम ही घटिया रोड है. और लॉट ऑफ बाइकर्स हैव रिड्यूस्ड गोइंग और हैव स्टॉप्ड गोइंग टू होटल अहूरा फ्रॉम मुंबई. एटलीस्ट जाते, ऐसे नहीं कि नहीं जाते, बट बहुत कम हो गए. ऐसा अगर ट्रैफिक मूविंग हो ना, तो ये देखो ये डोंकी देखो, डोंकी है, इडियट. ये भी आया है मुंबई में काम करने. मंडे टू फ्राइडे अभी ऑफिस ग्राइंड में फंस जाएंगे हम लोग. काम काम काम. वेल, काम करने के बाद ही आपको सैटरडे संडे एंजॉय करने का मौका मिलेगा. सो आई एम थैंकफुल टू द लॉर्ड दैट आई हैव वर्क. लॉर्ड, आई थैंक यू फॉर सनशाइन, आई थैंक यू फॉर रेन, आई थैंक यू फॉर जॉय, आई थैंक यू फॉर पेन. इट्स अ ब्यूटिफुल डे, इट्स अ ब्यूटिफुल डे. R15 का राइडिंग पोस्चर देखो भाई, इतना झुक के चला रहा है वो भाई. काम पहुंचते पहुंचते ही उसका बैक टूट जाएगा. और ये ट्रैफिक में कैसे ही चला सकते हो बॉस. मुझे भी नहीं पहने इसने तो यार. जब जूता खोलेगा इतना बांस आएगा ना. सो इन विंटर्स स्पेशली ना, योर फीट स्वेट अ लॉट इफ़ यू आर वेयरिंग द शूज़. सॉलिड बांस आने वाला है उसका. ब्लूटूथ हेडसेट लगाया है उसने. मुझे तो पहन ले भाई, मुझे तो खरीद ही सकता है. दिस इज़ अ चेतक, द इलेक्ट्रिक वन. आई हैव सीन द वीडियो दैट चेतक को उसने वो लोग ने ना प्रमोट करने के लिए पानी में भी डुबाया था. एंड दे वांटेड टू शो दैट इवन इन द रेन्स नथिंग विल हैपन टू द बाइक. बस वाला मुझे दबा रहा था लेफ्ट पर. क्या हो गया भाई? डंपर बंद पड़ गई है या किसी को ठोक दिया? हो एक्सीडेंट हो गया है. हैड टू बी द डंपर, हैड टू बी द डंपर. ब्लडी हेल, had to be the dumper. These bloody dumpers are so, they drive so rashly. Every now and then you will see in the news that a dumper has been the cause of the accident, because you know the drivers, they drink and they drive. जब आप ये सब कचरा जब उठाते हो, इतना बांस आता है, तो in order to get over that smell, what these people do who work, they drink a lot of alcohol. तो उन लोगों को वो स्मेल से फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट. सो व्हेन दे कंज्यूम अल्कोहल एंड दे ड्राइव, दे आर नॉट ड्राइविंग एट देयर 100% कैपेबिलिटी. तो हम अभी आए हैं अंधेरी, ऑलमोस्ट अंधेरी. सीधे जाओगे तो अंधेरी का फ्लाईओवर आएगा. हैरियर भी अच्छा दिखता है. लेफ़्ट का सिग्नल दे रहा है, उसको लेफ़्ट से जाना है आगे. हीरो सेल्स एंड सर्विस. पहले एक्चुअली मैं ना हीरो रैली, वो क्या बोलते हैं, एक्सपल्स देख रहा था मैं, द रैली प्रो एडिशन. बट मुझे वो बाइक है ना, मेरे लिए ठीक नहीं लगा. मेरे लिए, दैट इज़ फॉर मी. दूसरे लोग के लिए अच्छा होगा, बिकॉज
वो बाइक है 200 सीसी। अब मुझे चाहिए था 300 एंड 400 सीसी के आसपास की बाइक, 350 400 सीसी के आसपास की बाइक, दैट वाज 200। अगर वो ना 350 या 400 होता ना तो मैं 150% वो लेता रैली प्रो एडिशन। इट्स अ फैंटास्टिक बाइक, जस्ट दैट द क्यूबिक कैपेसिटी वाज ओनली 200 सीसी। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, आई नीड अ बाइक विच इज़ थोड़ा पावरफुल होना चाहिए बाइक, एंड दैट इज़ वाई आई वेंट फॉर दिस बाइक एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग माई चॉइस एट ऑल। आई थिंक आई मेड द बेस्ट डिसीजन। ब्यूटीफुल बाइक है यार ये। एक मेरा ड्रीम है या तो कावासाकी वर्सेस या तो होंडा का ना, मुझे एक वो NX 500 भी अच्छा लगता है। NX 500 ऑल्सो इज़ गुड, बट ज़िंदगी में एक बार मुझे ना इनलाइन 4 बाइक चलाना है यार। कभी नहीं चलाया हुआ इनलाइन 4। इनलाइन 4 बाइक तो चलाना है मतलब ख़रीदूँगा मैं, 100% ख़रीदूँगा, भले वो कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो, बट ख़रीदूँगा, चलाऊँगा उसे शौक के लिए। एक ही ज़िंदगी है भाई लोग, पूरा कर लो, सारे अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। कोई नहीं याद रखता है आपको, 1 साल 2 साल के बाद सब भूल जाते हैं। तो जो करना है आपको कर लो। BR कहाँ की गाड़ी है? वो जो सामने एनफील्ड जा रही है उसकी बाइक है BR 29B। कहाँ की हो सकती है? बिहार की है गाड़ी, पता नहीं। ट्रैफिक देखो भाई, मंडे मॉर्निंग ट्रैफिक भाई लोग, देख रहे हो कि नहीं? नेक्स्ट लेवल ट्रैफिक है गाइज। इफ़ यू नो DJI Action 4 में मैं लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकता हूँ, अगर आप जानते हो ना प्लीज़ थोड़ा कमेंट करके मुझे बताना। आई वांटेड टू लाइव स्ट्रीम दिस माय राइड टू द ऑफिस सो दैट पीपल कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग एंड मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि बाइक पे जाना चाहिए, गाड़ी में जाना चाहिए या ट्रेन लेके जाना चाहिए। ओह KTM ड्यूक 200 ये वाली बाइक थी मेरे पास, 2013 में मैंने लिया था उसे, बट आई हैड द ऑरेंज वन। ये इसका ब्लैक एंड वाइट है। KTM हैज़ टू बी ऑरेंज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये अंधेरी का फ्लाईओवर है आगे। ओके, दिस इज़ द मंडे इवनिंग ट्रैफिक। अब ये जो ट्रैफिक है दिस विल बी राइट अप टिल कांदिवली बोरिवली साइड, ऐसा ही चलेगा। In the morning the traffic I would say was slightly better, but in the evening the traffic conditions are worse. Let's see how it goes. The property prices are also increasing so much. कौन खरीद रहा है ये सब घर पता नहीं, बस बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनते जा रही है, बट खरीद रहा कोई नहीं है, या खरीद रहे भी होंगे। So much of wealth in Mumbai. If you can see the red light ahead, traffic is moving at a snail's pace. I saw an ad or I saw an article where I saw Avenger is coming out with its 400cc, but I somehow have lost interest in cruisers. There was a time when I was interested in cruisers, but considering that I live in Mumbai and यहाँ के जो road conditions है माशाल्लाह है, so I don't prefer a cruiser. This Scrambler is the perfect bike, or an adventure kind of a bike which has good suspensions is something that you need in Mumbai. A tall bike with good suspensions. ये कौन सा बैग यार? I like his bag. Looks pretty neat. 40 लीटर, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। देख लो भाई लोग मंडे का ट्रैफिक शाम के वक्त। समय हो गया है 6:45 एंड दिस इज़ द वे द ट्रैफिक इज़। बट इफ़ यू आस्क मी, आई वुड स्टिल प्रेफर टू गो बाय बाइक दैन बाय कार, क्योंकि यही अगर मैं कार में जाता तो मुझे नहीं बोल के कम से कम 2 घंटे लगते घर पहुंचने। अंधेरी से कांदिवली आई वुड टेक अबाउट 2 hours टू रीच, बट बिकॉज आई एम ऑन द बाइक आई वुड टेक मैक्स टू मैक्स 1 hour, वरना शायद 45 मिनट्स में भी मैं पहुंच सकता हूँ, बट मैक्स टू मैक्स 1 घंटे के अंदर मैं पहुंच जाऊँगा। बट अगर मैं कार में आता तो शायद मिनिमम 2 घंटे लगते, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मैक्स तो ज़्यादा भी हो सकता है। और जब ऐसे गाड़ी रोकते हैं ऑन द हाईवे तो और भी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। देखो अभी वो कार की वजह से थोड़ा ट्रैफिक हुआ था, जैसे उसको पास किए तो थोड़ा खुल गया रोड। सो लॉट ऑफ टाइम्स द ट्रैफिक इज़ देयर बिकॉज ऑफ पीपल हु स्टॉप द कार ऑन द हाईवे। अभी मजबूरी में रोका था या पता नहीं क्यों रोका था इसे ऑन द हाईवे। सीधा बस, माई गॉड इट्स जैम पैक्ड। फ्रिकिंग हेल, बस में खड़े रहने की जगह नहीं है, बैठने का तो भूल ही जाओ, खड़े रहने की जगह नहीं है। दैट इज़ अ लाइफ इन मुंबई। स्ट्रगल करना पड़ेगा बॉस। मुंबई में यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स बट यू विल हैव टू स्ट्रगल। ट्रैफिक देखो बॉस,
बम्पर टू बम्पर। इंसान का वक्त आधा समय ये ट्रैफिक में ही चला जाता है। देर आर सम पीपल हु कम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस टू वर्क इन मुंबई। कोई तो पनवेल से आते हैं, कोई पालघर से आता है। मैं उनको पूछता हूँ कि कितना समय जाता है, बोलते हैं सर 2.5 से 3 घंटे मिनिमम वन वे हो जाता है, 2.5 घंटे ट्रैवल करने में, क्योंकि उन लोग को शायद 2-3 ट्रेन बदलने पड़ते हैं, या तो कभी कभी बस चेंज करने पड़ते हैं। सो इट्स क्रेजी हेक्टिक लाइफ। तो ये संडे देयर वाज अ ट्रायम्फ ग्रुप राइड टू लोनावला's टाइगर्स पॉइंट विच आई मिस्ड बिकॉज आई हैड गॉन टू होटल अहूरा फॉर अ बाइक राइड विद माई ब्रदर. I really enjoyed the ride with my brother. This is the first time that we both rode together. Although it was a short ride, 100 kilometers going and 100 kilometers coming back, but मज़ा आया. And hopefully शायद in future और थोड़ा लंबा राइड करेंगे. See, this bike has stalled right now, है ना. बाइक है ना ऐसे स्टॉल होती है. This is the only drawback ये बाइक का. फर्स्ट सेकेंड गियर में ना गाड़ी बंद पड़ जाती है. Although you're handling the bike pretty well, but it's not forgiving. बाइक कहीं ना कहीं स्टॉल हो जाती है, बंद पड़ जाती है. आप बराबर क्लच आपका यूज़ कर रहे हो, बट स्टिल द बाइक जस्ट शट्स डाउन. स्टार्ट भी हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, बट इट जस्ट स्टॉल्स. सी द ट्रैफिक मैन, क्रेजी. सोचो आप इतना पूरे दिन काम के थक गए और फिर यहाँ पे आपको ऐसे ट्रैफिक में घर जाना हो और डेली यही करना हो, तो सोचो व्हाट अ लाइफ. इसलिए जब सैटरडे संडे होता है ना बॉस, मैं तो निकल जाता हूँ यार. संडे को कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ बाइक राइड पे. वरना ऐसा लगता है कि पूरा हफ्ते क्या किया यार, वरना राइट. पूरे दिन पूरे हफ्ते काम करो, घिसो, रगड़ो और फिर सैटरडे संडे घर पे रहो ना. भाई हमसे ना हो पाएगा. इसलिए संडे कुछ ना कुछ मैं कहीं ना कहीं बाइक राइड पे निकल जाता हूँ. मज़ा आता है, अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि कुछ किया, वरना यू फील दैट यू आर नॉट लिविंग यार, यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग. ब्लैक वारंट, ये देखो भाई साहब को बहुत जल्दी है उसको. हे भगवान तेरी अखंड माया, कभी धूप तो कभी छाया, आज मटन तो कल पाया. बाइक फर्स्ट सेकंड पे ही चल रही है, थर्ड पे जा रही नहीं है, फोर्थ का तो नामो निशान ही नहीं है. सो गिविंग यू सम प्रो टिप, इफ़ यू आर न्यू टू मुंबई और आप बाइक लाते हो तो आपको लेफ़्ट से ऐसे बाइक निकालना है. अगर आप राइट हैंड साइड में या बीच में गाड़ी चलाओगे तो आप कभी नहीं पहुँचोगे. सो यू हैव टू कीप योर बाइक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड and keep moving along with the traffic slowly but surely. कार भी समझ रहा है वो बाइक वाला है, वो भी लेफ्ट पे रख रहे निकाल रहे हैं. Normally the cars, the taxi people, they know that left hand side is the biker's lane, but पता नहीं ये क्यों लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ी चला रहा है. मे बी ही वॉन्ट्स टू टेक द एग्जिट, क्योंकि आगे जोगेश्वरी का फ्लाईओवर आएगा तो वो एग्जिट लेगा. अरे अच्छा, तभी ये, ओहो हाँ, हम निकल गए. सो वी आर ऑन द जोगेश्वरी फ्लाईओवर. अगर आप ये लेफ़्ट से जाओगे सो यू विल गो टू SV रोड. मेट्रो देखो, लुकिंग लाइक शिकागो में ऐसे ट्रेन्स चलते हैं ऊपर, ट्रेन जो भी बोल दो. कमेंट डाउन बिलो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मुंबई ट्रैफिक. लेट मी नो इफ़ यू गो थ्रू द सेम थिंग लाइक आई एम गोइंग थ्रू एवरी डे. पता तो चले कितने लोग ये प्रॉब्लम से गुजरते हैं. जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोग ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. मुंबई इज़ ओवर पॉपुलेटेड. कभी कभी ऐसा लगता है अक्खा इंडिया मुंबई में. गजब ट्रैफिक है यार. कमेंट डाउन बिलो अगर आपके सिटी में भी इतना ट्रैफिक है. मुझे ये पता है कि बैंगलोर में काफ़ी ट्रैफिक होता है. बैंगलोर ट्रैफिक इज़ ऑल्सो क्रेज़ी, दिल्ली ट्रैफिक इज़ ऑल्सो क्रेज़ी. बट कंपैरिजन में आप बताओ कि आपके सिटी में कितना ट्रैफिक है. जस्ट लुक एट इट मैन. फ्रॉम व्हेन आई एम गोइंग ऑन गियर 1 and 2 ओनली. मैं कौन से व्लॉग्स देखता हूँ, स्प्लेंडर वाले लोग भी लेह लद्दाख पहुँच जाते हैं यार. एक लाइफ में एक टाइम मुझे लेह लद्दाख जाना है, एक टाइम चला कर बाइक. पता नहीं कभी हो पाएगा या नहीं, बट इच्छा है, ख्वाहिश है मेरी, एक बार लेह लद्दाख जाओ बाइक पे. आई डोंट नो इफ़ इट इज़ ओवर हाइप्ड और व्हाट, बट लॉट ऑफ पीपल जिसके भी मैं व्लॉग्स देखता हूँ ना, जो भी बाइकर्स हैं, सब ही बोलते हैं कि बॉस एक बार तो लेह लद्दाख आना, मतलब यू हैव टू गो ऑन अ बाइक राइड. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस. इसलिए इच्छा है मेरी वहाँ पे जाने की. कोशिश यही रहेगी कि जब तक हाथ पैर सलामत है, जब तक इन हड्डियों में ताकत है, तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जाऊँ मैं. देखो अभी जैसे मैं थोड़े राइट हैंड साइड पे आ गया हूँ मैं, बट रखना है मुझे गाड़ी लेफ़्ट पर इफ़ आई वांट टू गो फास्ट. ये भाई साहब क्या अचार वचार लेके जा रहे हैं, शायद अचार ही है ना. ऐसे कंटेनर में हम लोग अचार ही रखते हैं सारे. ही इज़ ऑल्सो इनटू द ग्राइंड. मेहनत कर रहा है बेचारा, इतना सारा सामान लेके जा रहा है. कहीं ना कहीं बेचने के लिए लगाया होगा अपना स्टॉल.
मे गॉड हेल्प हिम यार, ऐसे लोगों को गॉड को हेल्प करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प हिमसेल्फ। ये एवेंजर देखो कितना छोटा लग रहा है इसके ऊपर, है ना। आई मीन बाइक मस्ट बी गुड। मैंने एक बार एवेंजर चलाया था ना, बट इट्स आई फाउंड इट लाइक अ टॉय यार, मतलब वो मज़ा नहीं आया मुझे एवेंजर चलाने में, खिलौना जैसा लग रहा था मुझे। एक तो बिकॉज आई एम 6 फीट टॉल एंड आई वाज सिटिंग ऑन दैट बाइक, तो वो जो 3 पहिए वाला साइकिल नहीं होता है जो हम बचपन में चलाते थे, तो मुझे वैसा फीलिंग आ रहा था जब मैं उस पर बैठ के मैंने चलाया था। दूसरा जो पावर है वो भी मुझे कहीं ना कहीं लैक लग रहा था कि इट डिडंट हैव दैट सफिशिएंट पावर। आई एम यूज्ड टू राइडिंग, मतलब मैं तो KTM ड्यूक चलाता था, तो उसमें तो पावर ज़बरदस्त, लेकिन जब एवेंजर चलाया तो मुझे कुछ पावर ही नहीं लगा उसमें, एकदम खिलौने जैसा। वो दिखने में तो ठीक ठाक था, इट लुक्ड ओके, बट व्हेन आई सैट ऑन इट एंड आई टुक अ राइड, बाइक इज़ समथिंग लाइक खाना, लाइक फूड। जब आप पहला बाइट लेते हो खाने का ना, इफ़ द फूड इज़ गुड, माई आईज ऑटोमेटिकली क्लोज एंड दे रोल बैक, एंड दैट इज़ द टाइम यू नो, आई नो दैट फूड इज़ फ्रिकिंग माइंड ब्लोइंग। एंड बाइक इज़ समथिंग लाइक दैट। जैसे बाइक पे आप बैठते हो और जो फर्स्ट गियर डाल के आप थ्रॉटल देते हो, तब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला ना, तो ख़त्म, गेम इज़ ओवर। एंड दैट इज़ द सेम थिंग दैट आई गॉट दिस फ्रॉम दिस बाइक। मतलब ये जो फीलिंग मैं देख रहा था ना, मुझे ये बाइक से मिली। वो जैसे फर्स्ट गियर पे डाला, जब वो टेस्ट राइड के लिए आया था अपना स्क्रैम्बलर 400X लेकर, और मैं उसके साथ टेस्ट राइड के लिए गया था, जैसे फर्स्ट गियर में डाला मैंने, और गाड़ी ने ऐसा मुझे बोला कि बॉस राइड मी एंड राइड मी हार्ड। इतना मज़ा आया मुझे चलाने में। मैं बोरिवली तक लेके गया था वो बाइक हाईवे, और संडे का दिन था तो हाईवे खाली था, तो मस्त मुझे मज़ा आया था वो। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि दिस इज़ द बाइक बॉस। सो दिस इज़ द नेस्को सेंटर ऑन माई लेफ्ट। सारे एग्जीबिशंस जो होते हैं ना, ये नेस्को में होते हैं। अब ये बस वाला क्यों लेफ़्ट से चला रहा है भाई, पूरा ट्रैफिक जाम करके रख देगा बस ने। अभी बस नहीं रहता तो देखो बाइक वाले इतना आराम से निकल जाते हैं, बस वाला भी है ना नामाकुल। शायद उसको रोकना होगा लेफ़्ट पर, या तो एग्जिट लेगा लेफ़्ट। तो देखा आपने, अंधेरी से लेके अभी हम लोग आ गए हैं गोरेगांव। ये गोरेगांव हब मॉल है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आगे, जहाँ पे मूवी टाइम है, या तो सिनेमैक्स है, वन ऑफ द मूवी थिएटर्स, और वहाँ पर मैकडोनल्ड्स भी है। लेकिन ये जो स्ट्रेच है ना, आप साल के 365 डेज़ आ जाओ यहाँ पर, ट्रैफिक आपको मिलेगा ही मिलेगा, 150% मिलेगा। सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच, व्हाट I have read in the news is that they are going to expand this. They're going to expand this horizontally. I don't know how they're going to do it, but ये थोड़ा stretch होगा, which will kind of ease the traffic. अब ये कहने की बात है, अभी पता नहीं वो कब होगा, कब construction start होगा, कब road widen होगा. But like I said in the morning, कि you have to enjoy the traffic. अगर आप frustrate होगे, then आप survive नहीं कर पाओगे मुंबई में। You have to go with the flow, enjoy the traffic. मस्त में म्यूज़िक लगाओ, या तो fuck, which bike is this? Oh, see again it's stalled. देखा, वापस से बंद पड़ गया गाड़ी। Nonsense. और ये खाली लो गियर में होता है। इफ़ यू आर राइडिंग एट दिस काइंड ऑफ पेस, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ना, ये तभी ही स्टॉल होता है। बाइक डज नॉट स्टॉल ऑन व्हेन यू आर ऑन हाई स्पीड्स, और हाईवे पे आप तेज़ चला रहे हो तो तब नहीं होता है। ये सिर्फ फर्स्ट या सेकंड गियर में होगा। दे हैव ट्रायम्फ फेस्टिवल नॉट बीन एबल टू रेक्टिफाई दिस इशू। इससे पहले और ज़्यादा होता था इट सीम्स, बट कई हद तक ये प्रॉब्लम को लोग ने अरेस्ट किया है। बट जैसे कि आपने देखा 2 बार हुआ है। नाउ बिफोर यू कमेंट एनीथिंग कि आपको शायद बाइक चलाना नहीं आता, लेट मी टेल यू दैट आई एम 44 ईयर्स ओल्ड, और मैं बाइक, जब मैं 15 साल का था ना, तब से मैं बाइक चला रहा हूँ। तो काफ़ी सालों का तजुर्बा है मुझे। इट्स नॉट लाइक आई एम राइडिंग द बाइक फॉर द फर्स्ट टाइम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम है, इशू है, नॉट दैट बिग अ इशू, बट है। तो येस्टरडे व्हेन आई वाज राइडिंग माई ब्रदर्स KTM एडवेंचर 250, ज़मीन आसमान का फ़र्क था उसके फर्स्ट गियर में और मेरे स्क्रैम्बलर के फर्स्ट गियर में। उसके फर्स्ट गियर में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 4th गियर पे गाड़ी को पिकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि वो था फर्स्ट गियर। और माई ब्रदर वाज टेलिंग मी दैट ऑन द 6th गियर ऑल्सो आई वाज फीलिंग लाइक द बाइक हैड द पोटेंशियल टू हैव अ 7th गियर, इतना टॉप था। बट KTM ऑन अ हायर गियर, जैसे व्हेन आई वाज ऑन द 6th गियर, एंड अगर कुछ ट्रैफिक नहीं है और आप स्ट्रेच पे चला रहे हो ना, सुपर, बहुत स्मूथ थी, बहुत मस्के के से जा रही थी गाड़ी, मस्के के से जैसे जा रही थी। वेरी स्मूथ बाइक, वेरी स्मूथ इंजन, एंड दैट वाज अ 250cc। वही अगर शायद 390 होता तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा पावर होता उस पर। आई वाज राइडिंग अ 250। आई लाइक हिज टेल टाइडी, KTM ने। इट्स नॉट गॉट द एलोंगेटेड टेल दैट द बाइक्स यूजली हैव। जैसे अभी मेरे ट्रायम्फ में भी एक लॉन्ग टेल है, बट उसने निकाल दिया था।
I think by law you're supposed to have that. See, even this guy, he doesn't have the tail tidy. I mean, he doesn't have the long tail. The tower that you see in front of me, that is Morgan Stanley का tower. पीछे से एम्बुलेंस आ रही है. Luckily the traffic is moving, तो एम्बुलेंस भी निकल जाएगा. यहाँ पर है ना जनरली ट्रैफिक होता है, बट आज नहीं है, थोड़ा कम है यहाँ. I've got into the habit of riding the bike with the glove, you know. ग्लव नहीं रहता ना, तो मुझे बहुत एकदम इनकम्प्लीट फील होता है. अब जैसे संडे आई वॉज गोइंग ऑन अ बाइक राइड और मैं ग्लव नहीं लिया, आई फॉरगॉट टू टेक माई ग्लव्स. तो क्या हुआ कि मैं 5:30 को निकला घर से एंड आई टुक माई हेलमेट एंड आई थॉट आई टुक बोथ माई ग्लव्स. हेलमेट के अंदर सिर्फ एक ही ग्लव था. तो जब मैंने देखा, मैंने बोला कि दोनों ग्लव होगा उसके अंदर, लेकिन था एक ही ग्लव. सो व्हेन आई केम डाउन एंड आई सॉ देयर वाज ओनली वन ग्लव, देन आई डिडंट वांट टू गो बैक अगेन ऑन टॉप बिकॉज फिर फैमिली डिस्टर्ब होगा. दे वर स्लीपिंग. मैंने बोला छोड़ो, बिना ग्लव के बाइक चलाएंगे. बट आई वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल व्हेन आई वॉज राइडिंग. डर जैसा महसूस हो रहा था मुझे. बट व्हेन आई वेयर द राइडिंग जैकेट, वेयर माई ग्लव, व्हेन आई वेयर माई बूट्स, तो मुझे एकदम अच्छा प्रोटेक्टेड ऐसा लगता है. आई फील सेफ. एक मेंटल सुकून मिलता है. अब मुझे ना वो नी पैड्स भी लेने हैं, नी प्रोटेक्टर्स भी लेने हैं, नी एंड शिन प्रोटेक्टर्स, तो वो और भी अच्छा होगा. दैट इज़ फॉर लॉन्ग राइड्स एंड ऑल, तो वो भी लेना है मुझे. तो अभी बताओ गाइज, ये वाला एंगल कैसा लग रहा है. इसमें मैंने थोड़ा मेरे चिन माउंट के जो अडेप्टर्स है उसको थोड़े मॉडिफाई किए मैंने. जे हुक के साथ ना मैंने और एक एक्सटेंडर लगाया है, जिसकी वजह से मेरा जो DJI एक्शन कैमरा है वो थोड़ा और ऊपर हो गया है. तो अभी इसमें मुझे लग रहा है कि शायद एंगल का जो व्यू है वो बढ़िया आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है. आई जस्ट रेक्टिफाइड इट टुडे. मैं बाइक राइड पे गया अहूरा और मैं लोनावला गया था ना, तो मेरा एंगल जो था वो खाली मेरा ट्रायम्फ कंसोल आ रहा, बाइक का कंसोल आ रहा था, और ये इतना ही नज़दीक, जैसा जितना नज़दीक है सामने ये बाइक है ना, उतना ही आ रहा था. तो आगे का पूरा व्यू ही नहीं आ रहा था. जैसे आपको बस दिख रहा होगा अभी, या तो ट्रक्स दिख रहे होंगे आगे, वो सब आ ही नहीं रहा था. तो मैंने फिर एक एक्सटेंडर, मेरे पास पहले ना GoPro हुआ करता था, सो उसका जो एक एक्सटेंडर है वो मैंने लगाया है. तो अब मुझे लग रहा है शायद एंगल थोड़ा बेटर होगा. लेट्स सी, जब मैं एडिट करूँगा तो पता चलेगा. और इसमें मैंने अपने सैमसंग के AKG हेडफोन्स कनेक्ट किए हैं. इफ़ यू नो अ गुड इंटरकॉम सिस्टम, देन प्लीज़ रेकमेंड समथिंग दैट इज़ रीजनेबल एंड नॉट वेरी एक्सपेंसिव. जैसे वो सेना, कार्डो, ये सारे एक्सपेंसिव है. आई एम नॉट इतना प्रोफेशनल राइडर तो नहीं हूँ, तो समथिंग दैट 2 जन कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मी एंड माई ब्रदर. आई डोंट हैव अ ग्रुप, तो आई डोंट नीड समथिंग वेरी एक्सपेंसिव. तो अगर आप देख रहे हो एंड इफ़ यू कैन रेकमेंड मी कि कौन सा ख़रीदना चाहिए जो कि ना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो और क्वालिटी में भी अच्छा हो. तो एक जो मैंने देखा था, मैं बोल रहा हूँ, मैं आप बता सकते हो कि वो सही है कि नहीं. इट वॉज द AGS का Q8. वो वाला इंटरकॉम सिस्टम मुझे थोड़ा अच्छा लगा बिकॉज इट हैज़ मेश्ड इंटरकॉम एंड नॉट ब्लूटूथ. तो मेश इंटरकॉम में कैसा होता है कि आप कई राइडर्स के साथ बात कर सकते हो. ब्लूटूथ में क्या होता है कि आप सिर्फ एक ही राइडर के साथ पेयर कर सकते हो, राइट. तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ मेश इंटरकॉम, क्योंकि कभी इन फ्यूचर अगर मुझे और एक ख़रीदना पड़ा इंटरकॉम फॉर माई वाइफ, इफ़ फॉर एग्जाम्पल माई वाइफ एंड मी आर गोइंग ऑन अ राइड एंड माई ब्रदर एंड माई भाभी आर गोइंग ऑन अ राइड, तो हम लोग चारों ही बात कर सकते हैं एक दूसरे से. ब्लूटूथ में कैसा होगा कि आई कैन पेयर विथ माई ब्रदर, माई भाभी कैन पेयर विथ माई वाइफ, ऐसा, विच इज़ समथिंग दैट इज़ अ ड्रॉबैक. तो मैंने बोला mesh intercom is only better. And this Q8 is IP67 certified, तो waterproof भी है. इसमें you can connect calls, आप कॉल आंसर कर सकते हो. You can activate your, देखो वापस से स्टॉल हुआ है बाइक, ये तीसरी बार बंद हुआ है बाइक. ऑल्दो मेरा हाथ क्लच पे ही है, कंट्रोल भी बराबर से कर रहा हूँ, बट इसमें इतना सेंसिटिव है ना कि अगर आपने ज़्यादा क्लच पूरी तरह से नहीं दबाया ना तो बाइक स्टॉल हो जाएगा, बाइक बंद पड़ जाएगा. देख रहे हो ट्रैफिक, सेकंड गियर पे चला रहा हूँ बाइक कितने देर से, फर्स्ट सेकंड. जब रास्ता खाली हो अगर आगे, एंड व्हेन द राइडर्स और द ड्राइवर्स दे राइड वेरी स्लो ना, इतना इरिटेट होता है ना वो, मतलब पूरा रास्ता आगे खाली है, ठीक है, और वो भाई साहब अपने ही धुन में चला रहा है, तब बहुत इरिटेट होता है. ऐसे लोगों की वजह से भी ट्रैफिक होता है, इरिटेटिंग होता है. देख रहे हो अभी हो गया है समय 7:11 और हम अभी पहुंच गए हैं कांदिवली, कांदिवली बोल रहा हूँ, मलाड पहुंच गए हम. ये मलाड का फ्लाईओवर है. सो एज यू कैन सी ना, अगर बाइक हो तो आप कोने कोपचे में से निकल सकते हो. कार होगा देन यू कैन नॉट, व्हाट यू से, कट कॉर्नर्स. अभी देखो बाइक था तो मैं लेफ्ट में आ गया, फिर निकल गया आगे, सबसे आगे, राइट. यही चीज़ आप कार में नहीं कर सकते. सो कार में लग जाएंगे आपको 1.5 से 2 घंटे. अब तो भी थोड़ा ट्रैफिक, ये मैं बोलूँ ना, ट्रैफिक ये कम है,
इट इज़ नॉट, इट्स मूविंग ट्रैफिक, ठीक है। ऑल्दो अभी मैं 3rd गियर पे चला रहा हूँ, अभी 4th गियर पे गया हूँ मैं। ट्रैफिक है लेकिन मूविंग ट्रैफिक है तो कोई दिक्कत नहीं, एज लॉन्ग एज द ट्रैफिक इज़ मूविंग नो प्रॉब्लम। और ऐसे जैसे खाली रास्ता मिलता है ये बाइक तो हाँ क्या सो मच ऑफ प्लेजर इट गिव्स व्हाइल राइडिंग दिस बाइक है। बहुत मज़ा आता है बॉस, बहुत मज़ा आता है, ट्रस्ट मी। ऐसा नहीं है कि दूसरे बाइक्स पे नहीं आता होगा, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत मज़ा आएगा आपको, ये बाइक लोगे तो बहुत मज़ा आएगा। सस्पेंशन है ना इसका सबसे बेस्ट पार्ट जो है ये बाइक का है ना, मुझे सस्पेंशन लगता है। सुपर सस्पेंशन, कमाल का सस्पेंशन है बॉस ये बाइक का। और मैंने क्या ना, मैंने इसमें सामने ना फोक सील भी डाल दिया मैंने, आप पुट अ फोक सील, ताकि थोड़ा तो प्रोटेक्शन मिले फोक सील को। तो अब आ गए हम लोग कांदिवली, ये है आकुर्ली का मेट्रो स्टेशन। ठीक ऊपर हमारे हैं आकुर्ली मेट्रो स्टेशन। अब देखो यहाँ पर है ना ये एलिवेटर दिया है, ठीक है। यू हैव एन एलिवेटर ओवर हियर, बट इफ़ यू गो ऑन द ऑपोजिट साइड विच इज़ दैट फुट ओवर ब्रिज विच इज़ देयर, वहाँ पर कुछ आपके पास एलिवेटर नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए। तो मतलब भाई जो वहाँ से आ रहे हैं ना वो साइड से, कांदिवली ईस्ट साइड से, उनके लिए कुछ नहीं है, उनको सीढ़ियों से आना पड़ेगा ऊपर। सो इफ़ देयर आर ओल्ड पीपल, हाउ विल दे कम? दे विल हैव टू कम टू दिस साइड, दे हैव टू क्रॉस द रोड to take the elevator, or they have to climb the stairs. That is the stairs that they have to climb. Isn't that stupid? उनके लिए या तो एलिवेटर नहीं कर सकते तो एस्केलेटर बना दो। एलिवेटर वुड बी बेटर आई वुड से, बारिश में कोई दिक्कत नहीं होगा, बट दे हैव मेड द एलिवेटर ओनली ऑन वन साइड। तो जो कांदिवली ईस्ट से आते हैं उनके लिए एलिवेटर या एस्केलेटर नहीं है। गोदरेज का अच्छा प्रॉपर्टी यहाँ पर बन रहा है, गोदरेज रिजर्व, बिग प्रॉपर्टी, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ आ रहे हैं गोदरेज के यहाँ। एक लोधा है, एक गोदरेज है, एक कनक्या है, जो टावर पे टावर बनाते जा रहा है बॉस। खरीद कौन रहा है ये? तो यहाँ पे सामने ना ये बिल्डिंग के पीछे ग्रोवल्स मॉल है। इट्स अ गुड मॉल, नॉट द बेस्ट बट इट इज़ अ गुड मॉल। और ये एक दूसरा एरिया है जहाँ पे हमेशा ट्रैफिक होता है, बट बिकॉज आई हैव अ बाइक आई कैन ईजली कम इन फ्रंट। सी दिस पोर चैप इज वर्किंग इन एंटायर डे in this dust pollution, young chap. So this bridge, not a bridge actually, I don't know what you would call it, but yeah, you will call it a bridge actually, not a flyover, it's a bridge, has been extended. So if you can see, the walls have been newly constructed. An ambulance, okay, it's going on the left. So you see this bridge has been extended. ये जो आप जगह देख रहे हो ना, ये जो डिस्टेंस है, द विथ ऑफ दिस ब्रिज वॉज हाफ द साइज, हाफ। तो यू कैन इमेजिन द ट्रैफिक दैट यूज्ड टू बी देयर अर्लियर, जब ये साइज और द विथ ऑफ द रोड वॉज हाफ, अब तो उसको डबल कर दिया, मतलब इतना चौड़ा कर दिया है, उसके बावजूद ट्रैफिक है। बिकॉज दिस राइड विल टेक यू टू बोरिवली, सो द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम कांदिवली लोखंडवाला, एंड इफ दे हैव टू गो टू बोरिवली देन दे हैव टू टेक दिस राइट टर्न। अब इसके कारण भी ना बहुत ट्रैफिक होता है, और यहाँ से सीधा जाओगे आप तो सीधा कांदिवली ईस्ट स्टेशन जाओगे। सी द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक बॉस, कितने सारे लोग, क्यों नहीं जाने दे रहा था भाई, क्या दिक्कत है? अच्छा मैजिक क्रॉस करे, वेरी गुड वेरी गुड। कमेंट डाउन बिलो इफ यू फाइंड द कॉप टू बी हेल्पफुल टुवर्ड्स दैट ओल्ड लेडी, very nice. I'm glad to see that the cop, he was helping that old lady cross. See the traffic man. और जैसे मैं आज सवेरे में बोल रहा था ना, I was telling in the morning that once you come after 6 at the कांदिवली स्टेशन, और आपको अगर लोखंडवाला आना है, none of the rickshaw people will want to go to लोखंडवाला because of this traffic. कोई भी रिक्शा वाला आपको नहीं लेके जाएगा इस ट्रैफिक में। देखो see the madness, पूरा ट्रैफिक जैम। Now this crowd is coming from Borivali side, ठीक है? So if they have to go to Kandivali, they take the exit and then they join this road. Now how see the bottleneck? Unbelievable. This guy by mistake he stamped my feet and he touched my, what do you say, hand and touched his head. In Indian culture it means that I'm sorry, I stamped your feet by mistake and I apologize. Crazy traffic. जस्ट सी द ट्रैफिक यार, कैसे इंसान इसी में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पता है, घर। और इसके बाद जब घर जाते हैं और फिर देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू फेस एट होम, है ना, घर में चिक चिक, आदमी परेशान हो जाता है बॉस। उसके बाद आदमी या औरत, अगर इवन इफ अ लेडी और वुमन गोज टू अ होम आफ्टर दिस ट्रैफिक एंड देयर इज the home is not a peaceful place, then boss your mind is totally messed up, yeah.
जब घर जाते हो ना आपको चाहिए सुकून, राइट? तो अभी मैं जाऊंगा घर, एक बढ़िया सा शावर लूँगा, एक बढ़िया सा शावर लूँगा, बेडरूम में जाऊंगा, एसी चालू करूँगा, एकदम मस्त वाला 22 पे रखूँगा, एक बॉटल बियर खोलूँगा। हाँ, मैं तो पहले से ही मूड बना रहा हूँ। चिल्ड बियर खोलूँगा और जो फर्स्ट सिप है ना बॉस, इतना प्लेजर देता है ना। If you know what I'm talking about, that first sip of beer after a long days of work gives you so much. See, all these people are waiting for rickshaw, but none of them will get a sharing rickshaw. क्यों? क्योंकि कोई जाने वाला है ही नहीं. Poor thing, I cannot even take anybody because मैंने मेरे सीट के पीछे मेरा बैग रखा है and I put a net and I've tied up my bag, जो मेरा haversack है, तो मैं किसी को पीछे बैठा भी नहीं सकता हूँ. जनरली अगर मैं कार में आता हूँ ना और मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो 2-3 को मैं पिकअप कर लेता हूँ, लोखंड वाला जिसको जाना है. Oh God, have mercy on me, Jesus Christ, Mother Mary, help me in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. क्या ट्रैफिक है बॉस. बट चलो कोई नहीं. 7:45 को निकले थे ना, अभी 6:45 को निकले थे, अभी टाइम हो गया है 7:22. नहीं बोल के 10 मिनट में तो पहुंच ही जाएंगे घर. सो मेंटली आई एम काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड. आई थिंक ही वांटेड अ लिफ्ट, लेकिन मैंने दे नहीं पाया उसको. कैसे दूँ? मेरे बैक सीट पे मेरा बैग रखा है. सी अ लॉट ऑफ पीपल ना, इफ दे डोंट गेट रिक्शाज दे गो वॉकिंग. क्या करेंगे, उनके पास चॉइस ही नहीं है, चल के ही जाएंगे. सो दे ऑल गो वॉकिंग. ना इमेजिन आप पूरे दिन काम से थक कर आ रहे हो, ट्रेन के धक्के खा के आ रहे हो और फिर आपको घर चल के जाना है. मतलब क्या बोले यार, क्रेजी ना. दिस इज़ मुंबई मेरी जान. अगर आपको मुंबई में रहना है तो बी रेडी फॉर दिस. दिस इज़ मोर फॉर पीपल हु वांट टू कम टू मुंबई. उनको लगता है कि मुंबई बहुत अमेजिंग प्लेस है. हाँ, अमेजिंग प्लेस है, मैं ये नहीं बोल रहा अमेजिंग प्लेस नहीं है, बट इट कम्स विद इट्स प्रोज एंड कॉन्स एंड दिस इज़ द मेजर कॉन, ट्रैफिक. आपको एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचने के लिए ना समय से कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना समय मुझे लगेगा, नॉट बाय द डिस्टेंस. आपको 1 किलोमीटर ना शायद आपको कम से कम कभी कभी 30 मिनट भी लग सकते हैं 1 किलोमीटर कवर करने के लिए, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार. सीन है. तो मुंबई में कहीं पे भी जाना हो ना तो कोई ये नहीं पूछता है कि कितना दूर है, या तो अगर कोई सवाल पूछता है कि कितना दूर है तो जवाब में आता है कि आपको 30 मिनट लगेंगे या 2 घंटे लगेंगे, है ना. तो जवाब आपको ऐसा मिलेगा. आपको ये नहीं मिलेगा कि 10 किलोमीटर है या 15 किलोमीटर है ना. आपको मिलेगा कि 25 मिनट लगेंगे आपको या 30 मिनट लगेंगे आपको. ओह लॉर्ड, हैव मर्सी ऑन मी यार. ये बाइक का ना एक ड्रॉबैक है, इज़ द हेडलाइट. नाक के बराबर है मेरा हेडलाइट. इज़ यूजलेस हेडलाइट. आई डोंट नो क्या सोच कर वो लोग ने ये हेडलाइट रखा है. द ल्यूमिनेंस इज़ वेरी पुअर. ओ माँ कसम. ओह जब बाइक ऐसा निकलती है ना यार, जब आप थ्रॉटल देके निकालते हो ना, बाइक ऐसे रिस्पॉन्ड करती है ना. आई डोंट नो हाउ टू टेल दिस यार, आपको महसूस करना पड़ेगा यार. सुपर्ब यार, सुपर्ब, अमेजिंग. ये देखो, ओ माय गॉड. Alright guys, that's it for me. If you like this video, please click on the like button, subscribe to my channel and hit the bell icon to be notified for all my future videos. Until the next time, ride safe, ride hard, take care now. Bye bye then. Love you guys.